The doctrine follows. It's Philip. The even the versions that mention it, it's because again it's debatable. But we see here that it follows with the consistency of other passages. जो दूसरे passages हैं ये उससे सहमत है, उससे मेल खाता है. मैं इसके बाद आगे भी आपको बताऊंगा. Okay? I'll tell you further also. Now hear this. जो मैंने आपको बताया कि लोग justification और sanctification में confuse करते हैं. I told you how people confuse themselves between Justification is to be declared righteous. धर्मी ठहराया जाना या एक व्यक्ति धर्मी बना दिया गया है बताता है. Okay, this is done by people's faith in Jesus. प्रभु यीशु पे विश्वास करने के द्वारा एक व्यक्ति His धर्मी blood ठहरता है. has justified us, उसके लहू ने हमें धर्मी बना दिया. declared us holy. उसने हमें पवित्र घोषित Now कर दिया. sanctification is a process of becoming Christ-like in our soul. Justification happened in our spirit. Sanctification happens in our soul and in our actions. अब शुद्ध किया जाना या पवित्र किया जाना, जो धर्मी ठहराया जाना था हमारी आत्मा में हो, लेकिन शुद्ध किया जाना हमारे प्राण में होता है. Okay? आत्मा हमारी नई हो गई, एकदम पवित्र हो गई. मसीह में हम नई सृष्टि बन गए, वो आत्मा है. मगर प्राण में अब प्रोसेस शुरू हो रही है पवित्र होने की. वो प्रोसेस है, मगर उद्धार हो चुका है व्यक्ति का आत्मा में. द जस्टिफिकेशन has been done in the spirit. Sanctification is now happening. It's a lifelong process. हम लोग सब बदल रहे हैं. Our spirit was made new instantaneously. Our spirit was made brand new. We are a new creation in Christ. लेकिन हमारे प्राण में हम सब बदल रहे हैं. We are all transforming in our soul. We are being sanctified. Okay. So फिर से मैं यही बोलूंगा कि हम लोग नहीं हैं जो डिसाइड कर सकते हैं. इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है फिलिप. सिमोन हम देखते हैं जो जादूगर था, हम देखते हैं बाद में उसका हृदय भी सही नहीं था, मगर फिलिपुस ने क्यों दे दिया उसे बपतिस्मा? क्योंकि उसने मुंह से बोला मैं यीशु को मानता हूं. इसका मतलब न्याय करने का अधिकार हमारा नहीं है. Amen. किसी व्यक्ति को आप सोचो, आज इतने सारे लोग हैं, मेरा दिल दुखता है उन लोगों के लिए. पास्टरों ने 6-6 महीने हो गए, 2-2 साल हो गए, उनको बपतिस्मा नहीं दिया. ये एक दिन परमेश्वर के सामने इन्हें उत्तर देना पड़ेगा कि तूने क्यों मेरे लोगों को रोका उस बपतिस्मे से जो मैंने आज्ञा दी है. Amen. Amen. We see Simon the sorcerer, his heart was not right, but Philip still gave him baptism because we are not the ones to judge. If someone says they believe with all their heart that Jesus is the Lord, they have the right to be baptized. And one day, it breaks my heart to see people waiting for 6 months, 2 years, pastors have not given them baptism. And one day these pastors will answer before the Lord, why did you stop my people from being baptized when I had given the command? Okay. Now, hear this. कई ऐसी आज स्टेट्स हैं हम जानते हैं जहां पे बपतिस्मा नहीं दे सकते पास्टर. डोंट होल्ड देम अकाउंटेबल. दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. वो बेचारे देना चाहते हैं, मगर क्योंकि कानून व्यवस्था ऐसी है कि अब वो बपतिस्मा नहीं दे सकते. इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. गॉड अंडरस्टैंड्स. We know many pastors, they want to give baptism to their people, but they cannot because of the laws in the state. And God Kevin Paul, that. what drove eunuch primarily to get to know Jesus? Signs and wonders? No, Kevin. Everybody is not drawn by signs and wonders. There are so many people who are seeking God. They want the truth. Everybody doesn't need signs and wonders. हर किसी को चिन्ह चमत्कार नहीं चाहिए. Okay? Signs and wonders, yes, signs and wonders draw masses, but there are so many people. कई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल चंगे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो गरीब नहीं हैं, कई ऐसे लोग हैं जो एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, मगर उनके अंदर एक खोज है कि मेरा बनाने वाला कौन है. And such people will come to Jesus. Many people are not looking for signs and wonders, but they have this desire to know who their creator is, who their maker is, and Jesus will draw them. Okay. All right. फिर से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं. Okay, पहले इसको खत्म कर लेते हैं. All right. So उसने बोला कि if you believe, तो मैं आपको बाइबल से फिर से बता देता हूँ पैटर्न. जैसे एक भाई कह रहे थे कि एक वर्स नहीं है, तो मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ कि बाइबल में जब हम पूरे एक्ट्स में देखते हैं तो हम एक पैटर्न देखते हैं, और अगर हम अपनी कलीसिया को वचन की कलीसिया के अनुसार बनाना चाहते हैं तो हमें ये पैटर्न फॉलो करना जरूरी है. So we look at a pattern, and if we want our church to become according to the word of God, then we must follow this pattern. Okay, sister, अगर आप जिस राज्य में हैं, अगर वहाँ बहुत मुश्किल है बपतिस्मा लेना, तो find out any other state where you can get baptized. If you're in a state where you cannot be baptized, कोई और राज्य Okay, और यहाँ पे
आप सोचिए, अगर मैं एक ऐसी कलीसिया में हूं जहां पे मैं अब अपने लोगों को बपतिस्मा नहीं दे सकता, And imagine if I'm in a church where I cannot baptize मगर my मैं people. स्वार्थी होकर कहता हूं मैं ही तुम्हें बपतिस्मा दूंगा, But- अगेन हम परमेश्वर के हृदय को नहीं समझ रहे But if I be selfish and say, no, I will only baptize you, then we हमें don't understand अपने लोगों God's को heart. वहां भेजना है जहां वो बपतिस्मा पा सकें We और should वापस वो send- आपकी कलीसिया में आ जाएंगे. We should send our people where they can be baptized and they'll come back to our church. Okay, all right. Okay, let's go to Acts 2:41 में हम देखते हैं. मैं आपको जल्दी जल्दी आयतें बता रहा हूं कि आपको पता लगे. Acts 2:41. प्रेरितों के काम 2:41. Then those who gladly received his word were baptized. जिन्होंने आनंद से उसके वचन को ग्रहण करके And बपतिस्मा that पाया. day, और उस दिन और उस दिन, किस दिन, जिस दिन उन्होंने वचन पे विश्वास किया, उस दिन 6 महीने बाद नहीं, 1 साल बाद नहीं, 6 बपतिस्मों की क्लासेस के बाद नहीं, Amen. उस दिन 3,000 जो आत्माएं थी, हम देखते हैं उन्होंने बपतिस्मा लिया. and that day, not after 6 months, not after a year, but that day when they gladly received the word, they were baptized. Okay, Acts 8:12 दूसरी. प्रेरितों के काम 8:12. But when they believed Philip as he preached the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, both men and women were baptized. परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे. ओके, कई लोगों ने कल भी ये पूछा था. लेट मी जस्ट क्विकली मेंशन दिस. कई भाई बहन पूछते हैं कि छिड़काव का क्या बपतिस्मा सही है. सबसे पहली बात तो मैं ओके, बैप्टिज्म जो शब्द है वो शब्द का मतलब ही है, बैप्टिजो शब्द से आता है जिसका मतलब है इमर्जन. The word baptism comes from the word immersion. ओके, इमर्जन यानी डुबोया जाना. तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या किसी के ऊपर पानी छिड़क के आप उसको डुबो सकते हो? अगर डुबो सकते हो तो फिर छिड़कने वाला बैप्टिज्म कर सकते हो आप. Can you immerse someone by sprinkling water on them? If so, then you can. ओके, पहली बात हमें समझना है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो डिडा के जो डॉक्यूमेंट्स थे, क्यों अलाउ किया गया ये चर्च फादर्स ने? क्योंकि वहां पे रेगिस्तान था और पानी हर जगह अवेलेबल नहीं था. Why the church fathers allowed? Because there was desert and water was not available everywhere. ओके, आप सोचिए, आप एक रेगिस्तान में जहां पानी नहीं है, मगर आप अपने पूरे दिल से आप कह रहे हैं नहीं मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं, मैं बपतिस्मे में भागीदार होना चाहता हूं, और वहां पे थोड़ा सा पानी है. सो व्हाट पीपल यूज्ड टू डू वाज दे यूज्ड टू स्प्रिंकल वाटर, नोइंग गॉड्स मर्सी दैट गॉड इज नॉट स्टिकलर. ओके, ही अंडरस्टैंड्स द हार्ट. So imagine you're in a desert and there's no water there to get baptized in. So there, people did it and God understood their heart. वो उनके दिल को समझा. ओके, क्या आप बपतिस्मा देते हैं अपोस्टल जी? नहीं, मैं बपतिस्मा नहीं देता बहन, और इसका एक कारण है, क्योंकि अगर मैं बपतिस्मा देने लग जाऊंगा तो फिर और कोई लोग हमारे लीडर से बपतिस्मा लेना नहीं चाहेंगे, और वो कल्चर हम नहीं चाहते अपनी कलीसिया में. हम चाहते हैं कि लोग इस बात को समझें कि बपतिस्मा देने वाला इम्पोर्टेंट नहीं, जिसके नाम से बपतिस्मा दिया जाता है वो प्रभु यीशु मसीह इम्पोर्टेंट है. I don't baptize personally, but the leaders in the church baptize because we want people to know the one giving baptism is not important, but the name in which you are giving baptism is important. ओके, हालेलुया. ओके, ठीक है. सो हम लोग कहाँ पे थे? एक्ट्स 8:12 में. 8:12, राइट? Yes. तीसरा रेफरेंस देखिए, एक्ट्स 8:36 to 38, फिर तो काम जो हमने अभी पढ़ा. यूनुक ने कहा, हियर इज वाटर, व्हाट हिंडर्स मी? एंड फिलिप एंड यूनुक बोथ वेंट डाउन इनटू द वाटर एंड बैप्टाइज्ड. दे वेंट डाउन इनटू द वाटर, दैट मींस देयर इज एन इमर्जन दैट हैपेंड. और खोजे ने कहा यहाँ पानी है, मुझे क्या रोक सकता है? फिलिपुस ने कहा क्या तू विश्वास करता है? तो उसने कहा हाँ मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है. तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजे दोनों जल में उतर गए और खोजे को बपतिस्मा दिया. अमन कुमार, व्हाट इफ समवन एक्सेप्ट्स क्राइस्ट बट दे स्टिल डू आइडल वर्शिप? अगर कोई मसीह को ग्रहण करने के बाद मूर्ति पूजा करे. मैं आपसे सवाल करता हूँ, तो करा है उसने मसीह को ग्रहण? Has he accepted Christ? Okay, don't, I mean like this is not even a question. ये कोई सवाल भी नहीं है. हाँ? If you're saying somebody has accepted Christ and does idol worship, अरे तो क्या उसने मसीह को ग्रहण करा है? Has he accepted Christ? No, he hasn't. नहीं किया. What does it mean to accept Jesus? इसका अर्थ क्या है यीशु? First we should be clear about that. All right. पहले आपको Okay. So Acts 9:17 to 18. फिर तो काम 9 उसका 17 से 18. Okay. ये पौलुस का जो बपतिस्मा, and immediately there fell from his eyes something like scales and he received his sight. He arose and was back. जब जो सॉल था, जब उस अंधा हो गया, जब प्रभु ने अपने चेले अनानियास को भेजा, उसने प्रार्थना करी और इसके आंखों से छिलके गिरे. पहली चीज
जो पतरस ने करी जब वो अंधापन प्रभु ने उसका ठीक किया, वो उठा और उसने बपतिस्मा लिया. The first thing that Paul did when the scales fell off his eyes, his blindness was gone, is that he got up and he got baptized. बपतिस्मा लेना जरूरी है, मतलब पास्टर जी हालेलुया, आप समझ गए भाई, प्रेज गॉड, आमेन आमेन. ओके, पांचवा पॉइंट, एक्ट्स 10:47 to 48. प्रेरितों के काम 10 उसका 37 और 47 और तो क्या पानी का छिड़काव सही है? ज्योति बहन, आप रेगिस्तान में हो तो सही है. अगर आप वहां हो जब पानी हो सकता है तो वैसे लो जैसे मतलब है उसका. बैप्टिज्म मीन्स टू इमर्स, डुबोना. ओके, मगर मुझे नहीं पता, हो सकता है आप रेगिस्तान से देख रही हो तो हो सकता है फिर छिड़काव सही है. ऑलराइट, एक्ट्स 10:47 to 48. Can anyone forbid water that these should not be baptized who have received the Holy Spirit just as we have? And he commanded to be baptized in the name of Jesus. क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है, और उसने आज्ञा दी कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिए जाएं. ओके, छठवां रेफरेंस. ओके, आप देख रहे हो छठवां रेफरेंस, एक्ट 16:14 to 15. प्रेरितों का काम 16, 14, 15. The Lord opened her heart to heed the things spoken by Paul, and when she and her household were baptized. Again, हम से देखते हैं, प्रभु ने उसका दिल खोला and they were baptized. प्रभु ने उसका मन खोला, वो बपतिस्मा पाया उसी समय. मैं अपने आप बपतिस्मा ले सकती हूँ? नहीं बहन, बाइबल में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि किसी व्यक्ति ने खुद. यीशु मसीह को भी जब बपतिस्मा लेना था तो वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गया, जबकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था मैं तेरे जूते के लेस खोलने के भी लायक नहीं हूँ. Even when Jesus had to be baptized, he went to John the Baptist, whereas John the Baptist said, "I'm not even worthy to latch his sandals." Okay, so please go to somebody. किसी के Are you पास telling me that there is nobody in this world or in this nation or in your city who can baptize you? कोई भी नहीं है कि आपके शहर में या इस देश में जो आपको बपतिस्मा दे सके. Okay, all right. 6 हमने देखा, ये लिडिया के लिए था, लिडिया जो बैप्टिज्म लिया लिडिया ने. 7वां हम देखते हैं, 7वां, मैं आपको 7वां रेफरेंस दे रहा हूँ, फिलिपियन जेलर जो था, एक्ट 16:31 to 33. प्रेरितों के काम 16, 31 से 33. ओके, अगर जिन लोगों को क्वेश्चन है, मैंने एक टीचिंग करी है, बहुत सालों पहले मैंने एक टीचिंग करी थी, आई बिलीव इन जीसस, शुड आई टेक वाटर बैप्टिज्म? If you have a question, I had given a teaching, मैं यीशु को मानता हूँ, क्या मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए? ओके, ऑलराइट. सो Philippian jailer, immediately he and his family were baptized. All right. So 16:31 to 33. Acts 18:8. 16:31. हम Corinthians को देखते हैं. And many of the Corinthians hearing believed and were baptized. प्रेरितों का काम 18:8. बहुत से कुरिन्थियों लोगों ने विश्वास किया और उस समय बपतिस्मा पाया. Okay. Acts 19:3 to 5. देखिए बहन, किसी ने कहा है कि पास्टर्स टीचिंग लेने के लिए, टीचिंग लेना कोई बुरी बात नहीं है. अगर आपके पास्टर्स चाहते हैं आपको अच्छे से बैप्टिज्म के बारे में सिखाना, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ. अच्छा है, वो आपको सिखा रहे हैं. मैं ये कह रहा हूँ कि हम किसी को महीनों तक नहीं रोक सकते इस अभिप्राय में कि पहले हम उनका जीवन जांचेंगे. If your pastors want to give you teaching before they give you baptism, that's a good thing, but we cannot stop anyone from being baptized on this premise that first we will check their life. Okay, क्योंकि यहूदा इस्करियोती तो यीशु के साथ रहता था, खाता था, पीता था, 3 साल उनके साथ रहा, सारे चिन्ह चमत्कार देखे, फिर भी उसने यीशु को धोखा दे दिया. तो हम कभी भी इस निर्णय में नहीं आ सकते कि ये व्यक्ति लायक है या ये व्यक्ति लायक नहीं है. केवल परमेश्वर लोगों के मनों को जानता है. Because Judas Iscariot was with Lord Jesus for 3.5 years, and we can yet he betrayed him, so we can never judge who is Okay. right and who will. Wilvin, who is capable of giving baptism? It's always good that somebody, either a leader or somebody whom leadership approves. कोई Okay. या तो अगुवा हो या जिसको अगुओं ने ठहराया हो. Okay, ये मत जाना अपने दोस्त के पास बोल देना कि मुझे बैप्टिज्म ले लो, क्योंकि फिर कोई एक सैंटिटी उस बपतिस्मे की खत्म हो जाती है. Yeah, don't go and It tell shouldn't your be friend to casual. baptize you. वो एक हम फिलिप को भी हल्की देख बात रहे हैं कि नहीं है. फिलिप एक इवेंजलिस्ट है, मगर फिर हम देखते हैं कि फिलिप के ऊपर अपोस्टल्स ने हाथ रखकर उसको एक अथॉरिटी में रिलीज किया था. Even we see Philip was an evangelist and the apostles laid hand and released him into work.
Okay. When is baptism taking place? आप मैसेज कर सकते हैं हमारी टीम को, वो आपको बता देंगे. You can message our team. हर महीने ही वो होता है. All right. So now let me give you 9th reference. मैं आपको The नौवां disciples of John at Ephesus, Acts 19:3-5. फिर तो काम 19 उसका 3 से When they 5. heard this, they were baptized in the name of Jesus. So again हम देखते हैं कि लोगों ने अचानक एकदम से there was no delay in baptism. जब उन्होंने सुना तो यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया, कोई देरी नहीं हुई, जैसे लोगों ने सुना उनको बपतिस्मा मिल गया. All right, verse 38. So he commanded the chariot to stand still, and both Philip and Eunuch went down into the water, and he baptized them. तो 38वीं आयत देखते हैं, जल और में उसने उतर पड़े और उन्हें खोजा को बपतिस्मा दिया. दूसरी बात है, बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा क्या दर्शाता है? सबसे पहले आपको समझना है, वो यीशु के साथ गाड़े जाने को दर्शाता है. You have to understand what does it mean to be baptized in water. It reflects being buried with Christ. ओके. निहाल भारद्वाज, आपके लिए मैं एक स्क्रिप्चर देना चाहता हूँ. जेम्स 1:5, याकूब 1:5 जरूर पढ़िएगा, इस पर मनन करिएगा. ऑलराइट. सो ये क्या दर्शाता है? बैप्टिज्म, बपतिस्मा जो है, जो यीशु के साथ गाड़े जाने को दर्शाता है. किसको दर्शाता है? गाड़े जाने को. Baptism reflects being buried with Christ. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. अगर एक डेड बॉडी है, एक मृतक शरीर है, क्या मैं उस पे मिट्टी छिड़कूं, क्या वो बरियल होगा? If there's a dead body and if I scatter some dust on it, some soil on it, will that be क्या वो burial? गाड़ दाना आप गाड़ सकते हैं किसी व्यक्ति को अगर आप थोड़ा सा मिट्टी छिड़क दें उसे? Can you bury someone if you put a little bit of पानी के soil on पूरा it, अंदर dust on जाने it? का मतलब कि आप मसीह के साथ गाड़े गए. Going into the water, being immersed in the water means it reflects you were buried with Christ. Okay, guys, can you block this guy called Nihal Bhardwaj? Okay, so आप क्या करा गए? गाड़े गए. ओके, तो गाड़े जाने के लिए आपको पूरा इमर्शन होना बहुत जरूरी है. So to be buried, you have to be completely immersed. ओके, सो अगर आपके ऊपर छिड़का गया है पानी और आपका मन अंदर से पवित्र आत्मा आपके अंदर डालता है कि आपको सही रीति से बपतिस्मा लेना है, पूरा इमर्शन के साथ पानी के अंदर जाके, सो फील फ्री. So if water was sprinkled on you to baptize you, and if the Holy Spirit puts in your heart to be baptized appropriately, then you should go for it. Okay. All right. They went down into the water and they baptized him. वो पानी में उतरे और उसको बपतिस्मा दिया. Okay. Verse 39. And when they came up out of the water, the Spirit of the Lord caught Philip away. जब वे जल से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया. Okay. So that the eunuch saw him no more and he went on his way rejoicing. और खोजे ने उसे फिर ना देखा और आनंद करता हुआ अपने मार्ग पे चला गया. हम देखते हैं कि जैसे ही बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा ने फिलिपुस को पकड़ा और सुपरनैचुरली ट्रांसपोर्ट कर दिया. We see as soon as the baptism was over, the Spirit of God caught hold of Philip and transported him supernaturally. Okay, so now we see the Philip has been taken because Philip has done his job. We see Philip has been taken, उसने अपना काम कर लिया. Okay, eunuch's joy or his rejoicing is a sign of salvation. David says, "Do not take away the joy of my salvation." वो खोजे का आनंद मनाना वो दर्शाता है उसके उद्धार के आनंद का. दाऊद कहता है मेरे उद्धार का आनंद मुझसे मत ले. Okay, बहन देवश्री, अपोस्टल जी, क्या एक से ज़्यादा टाइम बैप्टिज्म ले सकते हैं क्या? बहन, फिर से मैं कहूँगा, बपतिस्मा का मतलब समझिए प्लीज़ कि हम मसीह के साथ गाड़े गए एक बार. जब हम गाड़े गए, हमें बार बार गाड़े जाने की ज़रूरत नहीं है. हमें बार बार क्यों गाड़ना है? क्यों अपने आप को गड़वाना है बार बार? एक बार आपका पुराना मनुष्य तक गाड़ा गया, नया मनुष्य तो जीवित हुआ. उस बात को समझिए कि बपतिस्मा क्या दर्शाता है. वो कोई ईसाई रीति रिवाज नहीं है. We were buried once and that's enough. We don't need to be buried again and again. It's not a Christian ritual. Okay.
निखिल कल का प्लीज लाइव देखिए, मैंने इसके बारे में आंसर दिया है अबाउट द एज लिमिट. ओके. Okay, can we take baptism in a Baptist church or should I go to Pentecostal church? Okay, ये सवाल पूछा है जीसस क्राइस्ट ने. Okay, so yeah, जहाँ आप ले सकते हैं वहाँ लीजिए, ठीक है? Wherever you can be baptized. All right, Be baptized. जहाँ आप ले सकते हैं आप लीजिए. ओके. यूनक ने तो डेजर्ट में ले लिया था, ठीक है? वहाँ कोई ना तो बैप्टिस्ट चर्च ना पेंटिकॉस्टल चर्च था. There was no Baptist church or Pentecostal तो church in the अगर desert. स्विमिंग पूल में भी ले सकते हैं, नदी में भी ले सकते baptized in हैं. the swimming pool, मैंने in the एक river. डैम में, रात को सर्दियों में डैम था, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे को बपतिस्मा लेना है, तो मेरे पास्टर को प्रभु ने बोला कि बपतिस्मा दे. तो उनका फ़ोन आया मुझे, रात का समय था, देहरादून में कितनी कड़ाके की ठंडी होती है, तो वो हमें एक जगह ले गए जहाँ डैम है, वहाँ का पानी होता है एकदम ठंडा है रात को, और उस ठंड में पूरा पानी में हम गए अंदर और बाहर आए. I got So- baptized in winters in Dehradun in a dam, and it was very cold. Okay, so yes, all right. So हम देखते हैं कि eunuch has now gone on his way rejoicing. We now see that जो खोजा है वो आनंद मनाते हुए अपने रास्ते पे गया. All right, verse 40. But Philip was found at Azotus, and passing through, he preached in all the cities till he came to Caesarea. फिलिपुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया. Okay. All right. हम देखते हैं कि फिलिप, जब पवित्र आत्मा ने फिलिप को गाजा में पकड़ा, उसके बाद एजोटस नामक एक शहर में, जो एंशिएंट फिलिस्तीन की एक शहर है, वहाँ ले जाके रखा, जो 20 मील दूर है, करीबन 30-35 किलोमीटर दूर है गाजा से. सोचो, पवित्र आत्मा आपको एक क्षण में उठा के 30-35 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा, जितना वो चाहे, वहाँ ले जा सकता है. The Spirit of God took hold of Philip from Gaza and took him to Azotus, which is about 35 kilometers away, in a split of a second. Okay. All right. And passing through, हम देखते हैं passing through. अब वो जब जा रहा है बीच में से, तो he is preaching in all the cities. और जब when he is going, वो सब शहरों में प्रचार कर रहा है. DC, I don't know if I'm speaking gibberish by my mind or tongues. How do I know? DC, first of all, I don't like this word gibberish because it is created by antichrist pastors who want to stand against the work of the ministry. There is no gibberish. You speak in tongues by faith. So do it by faith. ये जो No, gibberish शब्द है, trusting the Bible that when I speak in tongues, I am not speaking to men but to God. ये जो जिब्रिश शब्द है, ये मसीह विरोधी ऐसे जो पास्टर्स हैं उनके द्वारा बनाया गया है परमेश्वर के काम को रोकने के लिए, पवित्र आत्मा के काम को रोकने के लिए. जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, विश्वास से बोलें. ओके. क्योंकि अगर ऐसा लॉजिक मैं हर जगह लगाऊं, तो जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं अपने कमरे में, मुझे कैसे पता कि खुदा मेरी प्रार्थना को सुन रहा है या मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं? जब मैं आराधना कर रहा हूं कलीसिया में, मुझे कैसे पता कि मेरी आराधना, वी डू इट बाय फेथ. If I put जब मैं this दे logic- रहा हूं, मुझे कैसे पता कि परमेश्वर उसको ग्रहण कर रहा है? एवरीथिंग वी डू इन द किंगडम, वी डू इट बाय फेथ. If I put this logic to everything else, when I'm praying in my room, how do I know God is listening to my prayer? When I'm worshiping, how do I know God is receiving my worship? If I'm giving, how do I know God is receiving my giving? Okay, Ben Anjali, हम no, विश्वास this is से not करते हैं. time travel. This is called translocation. That means God changes your location, जो एलाइजा के साथ भी बहुत बार होता था. इसको time travel नहीं translocation बोलते हैं. This used to happen to Elijah also. Okay, now he preached in all the cities till he came to Caesarea. उसने सब शहरों में प्रचार किया जब तक उसे सिरिया आया. Okay, ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि this became the home base of evangelist Philip. ये बहुत ज़रूरी है जानना क्योंकि ये होम बेस बन गया इवेंजलिस्ट फिलिप. Okay, जाते 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 लास्ट में ही settled in Caesarea. उसका घर वहाँ पे था. ये हमें कैसे पता चलता है फिलिप ने वहाँ आगे घर लिया या बनाया, जो भी हुआ होगा? Acts 21:8-9.
प्रेरितों के काम 21 उसके 8 से 9 Acts में हम देखते 21, 8 to 9. On the next day, we who were Paul's companions departed and came to Caesarea and entered the house of Philip the evangelist. Entered the house, कहाँ गए वो? They came to Caesarea and entered the house of Philip the evangelist, who was one of the 7, and stayed with him. Now this man had 4 virgin daughters who prophesied. So उसका घर है, उसकी शादी हो गई, अब उसकी 4 बेटियां हैं जो बाइबल बताती है, जो भविष्यद्वक्ता हैं. दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो 7 में एक था, जाकर उसके यहाँ रहे. उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी. जो लोग अन्य भाषा से बढ़ना चाहते हैं, मैंने आपको कल भी कहा था कि आपको केवल डिज़ायर रखना है, भूख रखनी है, और ऐसे किसी मिनिस्ट्री में जाइए, परमेश्वर के दास के पास जाइए, अपने पास्टर के पास जाइए, अगर वो आत्मा से भरे हुए हैं, और उनको बोलिए मुझे आत्मा का बपतिस्मा दीजिए, अपने हाथ मेरे सर पे रखकर प्रार्थना करें. एंड मेनी टाइम्स गॉड इज गोना फिल यू. आप परमेश्वर के लोगों के पास जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं उनके पास जाएं और उनसे कहें मेरे लिए प्रार्थना करें, और प्रभु आपको भरेगा. ओके. बार बार एक क्वेश्चन आ रहा था, कल नहीं पहले मैं पास्टर सैम को बोला था 23 सितंबर को रैप्चर होगा. मैंने पास्टर सैम को बोला, मैंने 24 तारीख को उत्तर दूंगा मैं इसका. So I was getting a question again and again that baptism is happening on 23 तो आज 24 सितंबर है, तो today is 24 September. ओके, हम सब यही हैं. We all are here ओके, प्रेज गॉड, क्योंकि अभी बहुत काम करना है. because there's so much work ओके, to do. लाखों आत्माएं बचानी हैं. Lakhs of people प्रभु need यीशु saved. मसीह जब आ रहे हैं उससे पहले Before the Lord बहुत Jesus काम comes करना back, है. there's so much work to do. ओके, और ये मेरी प्रार्थना है कि आप जब जो लोग हैं, बहुत काम करना है, This is my अकेले prayer. नहीं जाना है. There's so much